सो हाय एवरीवन, दिस इज मुस्कान। वेलकम टू ENG हब। सो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि सब बड़े सब मस्त होंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है उस टॉपिक का नाम है वॉइसेस। वॉइसेस हमने लगभग पूरे कर दिए हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कोई डाउट नहीं है। सो टुडे वी आर गोइंग टू पैसिव वॉइसेस ऑफ मॉडल्स एंड गोइंग थ्रू पैसिव वॉइसेस और इनफिनिटीज। सो बेसिकली हम स्टार्ट करेंगे आज हम स्ट्रक्चर से कि how is the structure of passive voices for the models. So structure would be like this: first subject, then model, then be, then verb की third form, then we use by to connect object, and then last में object, and then last में full stop. So so I am giving to you some examples like I shall help you. Then what is I? I is the subject. I is the subject. Shall is the model. Help is our first form, and you will be the object. Right? Now we have to change it into the passive voices. So firstly we have what to do. We make object. We have to change object into subject, then subject into object. Then object will, what is object? That's you. So हम यू को हम सबसे पहले सब्जेक्ट बनाएंगे। यू का सब्जेक्ट कौन होता है? यू ही होता है। यू का यू आएगा। देन नाउ इट्स टर्न टू बी फॉर मॉडल। अब हम मॉडल का यूज करेंगे। सो मॉडल क्या है यहाँ पे? शैल। शैल शैल मॉडल के साथ हमेशा हम बी का यूज करते हैं। तो क्या लगा दिया हमने? बी। हमेशा पैसिव वॉइसेस में क्या होता है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या लगा दिया? वर्ब की थर्ड फॉर्म। एंड देन वाई डू वी यूज बाय? बाय का यूज हम क्यों करते हैं? ताकि हम इसको जो भी हम ऑब्जेक्ट बना के लाएंगे उससे हम वाक्य को क्या कर सके? कनेक्ट कर सके। सो वी यूज बाय। देन we have to change subject into object. The subject is I, then we have to convert it into the object. So what is the object of I? That would be me, and then last में full stop. I hope you got it. So we are moving ahead. Then we have to take the second example. The second example will like this: you may get a job. Right? You is the subject, may is the model, get is the verb की first form, a job is the object. Now firstly we have to what to do? That we have to we have to convert object into subject. So we have done it. Now it's time to helping verb or model. So we are using their models. So we have to use may because it is given in the sentences. Okay. उसके बाद हम बी का यूज करेंगे। उसके बाद हमें पता है कि पैसिव वॉइसेस में हम हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो इसको हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम कन्वर्ट करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म में। दैट वुड बी गोट और गोटन। ओके, इट इज योर चॉइस व्हाट डू यू वांट टू यूज इट, गोट और गोटन। नाउ मूविंग अहेड, वी आर यूजिंग बाय फॉर कनेक्टिंग ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट वुड बी यू बिकॉज subject is you, and when we have to change subject into object, the object of you will be you. Full stop. Now passive voices of models are, I hope you have got it, you have understand. If you have any doubt you can tell me in the comment sections. Now moving ahead, we are going to passive voices of infinitives. What are infinitives, ma'am? Infinitives means those verbs that have 2 plus verb की फर्स्ट फॉर्म। इन्फिनिटिव्स मीन्स 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जिसमें 2 लगा हो और वर्ब की क्या हो? फर्स्ट फॉर्म हो। ओके, नाउ वी हैव मूविंग टू द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मीन्स लाइक सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस इन्फिनिटिव प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में फुल स्टॉप होता है। सो मैंने इसको शॉर्ट टर्म में लिख दिया सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस इन्फिनिटिव। सो मूविंग टू द एग्जाम्पल्स, these are active voices and these are passive voices. So the first example is he had to help us. He had to help us, and there is 2 plus verb की first form, so it is called to be infinitive. So here are the examples like he had to help us. He is the subject, had is the helping verb, 2 plus verb की first form is the infinitive, and s is the object. Now first we have to change object into subject. Object is we, and now moving to ahead, before
we are recalling that what is the subject for us. That's we. That is we. We have put it on it. Now we are going again ahead. That the helping verb is had. So I have put here had. Then infinitives. Infinitives means to plus verb की फर्स्ट फॉर्म. बट हमने आई हैव टोल्ड यू दैट हम जब भी हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं. सो आई हैव यूज्ड इट हियर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय का यूज एंड देन ऑब्जेक्ट. I think you have got it. Now we are moving ahead. The next example is the rule of it is time. So जहाँ पर it is time होता है, I am telling you in the short. जहाँ पर it is time होता है वहाँ पर रूल लग जाता है कि जहाँ पर it is time हो वहाँ के लिए क्या लगेगा, 4 + 2 + b + verb की थर्ड फॉर्म. वी आर गेटिंग दिस बाय एन एग्जाम्पल. मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर नहीं लिखी है क्योंकि मैं आपको बस एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाना चाहती हूँ. इट इज टाइम टू टेक टी. इसकी हिंदी क्या बनेगी कि चाय लेने का समय हो चुका है, तो इट इज टाइम का इट इज टाइम ही रहेगा. फिर हम यूज करेंगे फॉर का फॉर. अब किसके लिए समय हो चुका है, टी के लिए, तो हमने यहाँ पे क्या लगाया, ऑब्जेक्ट लगा दिया. मैम ऑब्जेक्ट पहले ही, हाँ, क्योंकि यहाँ पर हम इट इज का रूल लगाने वाले हैं इट इज टाइम का. सो इट इज टाइम के लिए हम क्या लगाते हैं, फॉर लगाते हैं, टी लगाते हैं, सॉरी ऑब्जेक्ट लगाते हैं. ऑब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे हम, इन्फिनेटिव. इन्फिनेटिव में क्या लगाते हैं हम, 2 + b + वर्ब की थर्ड फॉर्म. सो पैसिव वॉइस क्या बन गया इसका, इट इज टाइम फॉर टी टू बी टेकन. राइट. वी आर टेकिंग एन अनदर एग्जाम्पल. इट इज टाइम टू डू वर्क. ये समय किसके लिए हो चुका है कि हम काम करें. सो बेसिकली इट इज टाइम का इट इज टाइम रहेगा. फिर मैंने आपको बताया फॉर ऐड होगा, फिर बताया ऑब्जेक्ट ऐड होगा, उसके बाद टू लगाएंगे, उसके बाद बी लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे एंड देन फुल स्टॉप. सो आई थिंक कि मैंने आपको पूरे वॉइसेस कंप्लीट करवा दिए हैं. हियर वी आर गोइंग विद एंडेड ऑफ वॉइसेस. सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक कौन सा होना चाहिए, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना. फिर हम उसी को रिकॉर्ड करके आप तक पहुंचा देंगे. अगर आपको इनमें कोई डाउट है, यू कैन आस्क. Feel free to ask in the comment section, please. So thank you so much for connecting with me. Stay tuned, stay enjoying your voice for study. Thank you so much. Thank you. Bye guys. Bye.